morning, everybody, and welcome to SP Jain's GFMD webinar with Professor Samish Dalal. You all know Professor Samish Dalal specializes in the field of negotiation, entrepreneurship, and marketing. Yes, so our today's topic is based on negotiation and learning from the web series Rocket Voice. Good morning, sir, and over to you. All right, guys, good morning, everyone, and welcome to this very close to heart topic and the day. Seriously, guys, I don't know, but before I start, obviously, this is a very small thing, but I have to do this. And I want you guys to respond on this question कि हम में से कितने लोगों ने Rocket Boys web series जो अभी सोनी लिव पे आया था have seen? Just respond in your chat box, guys. How many of you have seen? Just respond, okay? And don't tell me कि तुमने half देखा, 2 episode देखा तो just tell me. In case you've seen, in case, I'm not saying कि compulsory देखना जरूरी था, but in case you've seen, just respond on that, guys. Everybody, quickly, guys, quickly, come on, yeah. I want people to be present and there. Okay. अरे no ज्यादा है. I'm surprised. Thank you, Dhaval Modi, fantastic. There is one person at least जिसने बोला scene. बाकी लोग तो देखे नहीं यार. मतलब क्या यार? It's the tribute to India's two best ever scientists we had, Dr. Homi Bhabha, Dr. Vikram Sarabhai. I'm sure guys नहीं देखा होगा तो आप कुछ definitely miss कर रहे हैं. मैं उसका marketing नहीं कर रहा हूँ, okay? और ना ही मुझे कोई commission incentives मिल रहे हैं. Important यहाँ पे ये है कि when I saw that for the first time, guys, trust me, it was just a web series for excitement. उसका जब advertise आने लगा था TV पे, trailer आने लगा था, तो I enjoyed seeing that, and then so did my wife and so did my son. Over a period of time, उसको एक बार देखा तो ऐसा लगा कि यार ये मैसेज कहने जा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज अपने को बताने जा रहा है. आर वी एक्चुअली कैप्चरिंग दैट और नॉट? क्योंकि कभी भी वेब सीरीज के ऊपर इतना मैंने R&D किया नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. रफली अराउंड अबाउट 35 से 40 मिनट्स का एक एपिसोड है, रफली, कुछ ज्यादा कम, एक्सेट्रा. एंड दैट टू स्प्रेड ओवर 8 एपिसोड, 7 एपिसोड. सो दैट इज टाइम कंजम्पशन, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन फिर भी लगा कि यार इसमें कुछ तो होगा. एंड सो देयरफॉर आई हैड टू skim through it the second time and the third time. And guys, trust me, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं 1942, 1944, 1947. उस पीरियड की बात करते हैं जब आज से जब कोई चीज नहीं थी हमारे पास. आज ये सब कुछ हमारे पास है, वहां पर उस टाइम पे कुछ नहीं था. And at that time, one Indian soul is dreaming about a space program, and there's another Indian soul that's thinking about an atomic bomb. And why? उसके पास अपने खुद के रीजंस हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे थे, उस लिमिटेशन में किस तरह से उन्होंने अपने विजन को देखा, अपने बिजनेस रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, अपने एंटरप्राइजिंग नेचर को देखा, किस तरह से अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करा, किस तरह से लोगों तक पहुंचे, किस तरह से लोगों का भला किया था. गाइस, इससे बेटर शायद आपको आज की तारीख में वेब सीरीज नहीं है. As I said, I'm not marketing a web series. The reason I'm telling you is, guys, please spend that much time going through that entire experience of the web series, guys. It's a brilliant thing, brilliant thing. मतलब the story unfolds with two boys. मतलब ये अपना Dr. Homi Bhabha and Dr. Vikram Sarabhai, who are coming from a very wealthy family. And एक बहुत मस्त जोक के साथ स्टार्ट होता है. When there's one person talking to Homi Bhabha and saying कि तुम तो विक्रम साराभाई को जानते होंगे, तो एक मस्त लाइन में बोलता है कि not all the wealthy people know each other, पर फिर भी ठीक है. And that is how the entire anecdotal thing starts. And उसके बाद जो पूरी चीज हो जाती है, guys, trust me, जो पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है has been an amazing experience, another amazing experience. And मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपीरियंस क्यों अमेजिंग है, क्योंकि इन दोनों का जो विजन है वो इंस्पायरिंग ही नहीं है, वो एंटरप्राइजिंग है. मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना. इंस्पायरिंग ही नहीं है, एंटरप्राइजिंग. एंटरप्राइजिंग का मतलब समझो गाइस. मेरे 99.999% फैमिली बिजनेसेस के जो ओनर्स हैं हैव बीन एंटरप्राइजिंग. 0.01 इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर चीज में होते हैं. जब आप जस्ट एंटरप्राइजिंग होते हैं, मतलब उसको मालूम पड़ा कि अरे यार ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है. कोई बंदा बोलेगा अरे ना साहब नहीं जा सकते, और वो बोलता है कि नहीं यार जा सकते हैं. एंड देन उसके बीच का जो डिस्कशन होने के बाद वो फाइट करके इमर्ज करता है, लेट मी टेक दैट रिस्क. एंड वो रिस्क लेता है.
वो रिस्क लेता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, धंधा अच्छा कर लेता है, एंड देन ही ग्रोज द बिजनेस. दैट्स नॉर्मल स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंड दैट्स द रियल स्टोरी एक्चुअली. ये ऐसी स्टोरी जिसको शायद हम लोग 110% क्या कहते हैं अनसुना कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, यार मेरे पापा ने तो बिजनेस बनाया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है. नहीं गाइस, नहीं. मतलब एक सिंपल सी चीज है. एक वेरी रिसेंटली एक फैमिली को मैं मिलने के लिए गया था, और उस फादर की मैंने स्टोरी सुनी, रोटे खड़े हो गए. ओके, अंग्रेजी में बोलते हैं गूज बम्स आ गए. मतलब जस्ट इमेजिन द स्टोरी. द फादर एक जमाने में होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर कटका लगाता था, डाइनिंग टेबल पे जहां पे लोग खाना खाते उधर कटका लगाता था. आज उसके खुद के 3 होटल है. उसने कैंटीन भी रन किए हैं, सब कुछ किया, और उसका 3 होटल है. जिधर पोछा लगा था वहां से लेके यहां तक का जर्नी 100% सेल्फ फाइनेंस्ड फ्रॉम सेल्फ मनी. मैंने बोला अभी वो एक्सपेंशन के मोड में है. मैं बोला अभी फंड रेज करोगे? बोले पहले जरूरत था पैसे का, तब किसी ने दिया नहीं. आज जरूरत नहीं है तो लोग पैसा देने के लिए आ रहे हैं. देखो समीर सर कितना कॉमेडी है लाइफ में. ही इज टेकिंग दैट एज अ कॉमेडी थिंग गाइस. एंटरप्राइजिंग. सो ये जो पूरी वेब सीरीज है रॉकेट बॉयज इज ए लेसन इन एंटरप्राइजिंग नेचर एंड इंस्पिरेशन. और उधर से मैं अपना चीज स्टार्ट करने वाला हूं. एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है, एंड से स्टार्ट करने में मजा आएगा. कभी कभार यू नो दैट्स द फन पार्ट ऑफ इट. होता यह है कि द सीरीज एंड्स with the topic being titled Rise of a New Dawn. ऐसा करके. डॉन मतलब यह डॉन नहीं है, यहाँ पे DAWN डॉन है, एक नए सूरज की, एक नए दिन की शुरुआत के बारे में. तो वहां पे ना ये फॉरेन शिकागो ट्रिब्यून से एक जर्नलिस्ट आया होता है, एंड ही इज द वन हु इज पब्लिशिंग, मतलब शिकागो ट्रिब्यून से आया है. एंड वो बंदा कुछ, एक सेकंड, शेयर स्क्रीन, करेक्ट. एंड वो बंदा देखता है विक्रम साराभाई को. तो वहां पे एक और लड़की होती है जो भी एक जर्नलिस्ट होती है, इंडियन जर्नलिस्ट, और वहां से वो स्टार्ट करता है. तो बोलता है कि ये विक्रम साराभाई हैज स्टार्टेड दैट PRL व्हिच इज द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी. उसने बोला फिर अहमदाबाद में अटीरा चालू किया व्हिच इज द टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन. उसके बाद उसने बोला कि विक्रम साराभाई ने IIM चालू किया, एंड नाउ ही गेट्स इनटू द स्पेस रिसर्च. तो बोलता है जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसा करके बोला. तो उस वक्त का जो रोल प्ले किया है वो है अब्दुल कलाम का. जिस व्यक्ति ने रोल प्ले किया है वो सुपर्ब लाइन बोलता है, एंड दैट्स वेयर माय पंच लाइन और दैट माय बिगिनिंग इज. चेक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन, ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन. आई डोंट वांट टू कमिट अ मिस्टेक, इसलिए मैंने यहां पे लिख के रखा था. सॉरी, यहां पे लिख के रखा था क्योंकि मैं इस लाइन से बहुत खुश हूं. Many of our family businesses ने guys belong to this league. वो लोग एक चीज में चैंपियन होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, वो उनको भी नहीं मालूम होता है. They are not champions in one thing or two thing, ऐसा नहीं होता है. But 110% मैं आपको अपने फैमिली बिजनेस के लोगों का एक डायमेंशन बता सकता हूं, एंड दैट इज दे आर एक्चुअली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. शायद एक चीज के चैंपियन कभी नहीं होते, लेकिन हर चीज में अपना एक अंडरस्टैंडिंग, एक डेप्थ डेवलप करके रखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनको पता चल जाता है. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसी में से बहुत मस्त चीज है, एंड में विक्रम साराभाई डिसाइड करते हैं कि ये स्पेस रॉकेट लॉन्च नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ी थी. तो पहले तो अपने आदमी को भेजते हैं वहां पे प्रेस एंड मीडिया को एड्रेस करने के लिए, और ऐसा बोलते हैं कि द लॉन्च विल बी डिलेड बाय अबाउट सम टाइम. इट्स नॉट अबाउट द लॉन्च, मिस्टर साराभाई इज जस्ट गेटिंग डिलेड, सो विल बी डूइंग दैट, ऐसा करके करता है. पर जब वो लॉन्च कैंसिल करने का डिसीजन लेते हैं विक्रम साराभाई, तो वो बोलते हैं आई विल गो एंड अनाउंस ऑन द प्रेस एंड मीडिया बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. उसने रॉकेट बनाया? नहीं. उसने क्या उसके अंदर स्पेयर पार्ट डाले? नहीं. उसने सब कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसके ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसने उसको पूरा ओनरशिप लिया है. It's a very, very difficult thing to become the owner of a thing which you perhaps have not done the screwdriver fitting and etc., but you still own the project.
एंड ये एक हकीकत, इसलिए मैंने बोला इट्स एन एंटरप्राइजिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। एंड जस्ट वो कैंसिल करने जाता है, देयर इज अ ड्रामेटिक एंट्री ऑफ डॉक्टर होमी बाबा, और वो बोलते हैं कि मैं लॉन्च तो होगा about half an hour delay and that's about it. And फिर एक मस्त fantastic conclusion है. I don't share that story. Please go and see that, guys. And as I said, I'm not marketing it, but मेरा personal recommendation है कि यदि आपने ये देखा नहीं तो शायद आप कुछ मिस कर रहे हैं, guys. मैं आपको देखने का तरीका भी बताता हूं। कान में ऐसा हैंड्स फ्री लगाइए, हाथ में रखिए और उसके अंदर घुस जाइए, इमर्स हो जाइए, अपने आप को एक कैरेक्टर बना लीजिए। देखो क्या एंजॉय करते हैं इसमें। हमारे कौन कौन दुश्मन थे जिन्होंने अपने को खराब किया, अच्छा किया। Everything is coming out in a superb narrative. You come across the character of C.V. Raman. India is one of the leading scientists and the brains at that time, and the way he nurtures younger people, किस तरह के लोग sacrifice देते थे, किस तरह के लोग बलिदान देते थे, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। एनीवेज, क्या मैं स्टोरी कहने के लिए इधर आया हूं? नहीं यार, आप लोग सोच रहे हैं स्टोरी थोड़ी ना कहने आप आए थे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए ये रूपरेखा पूरी बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं, नंबर 1। एंड नंबर 2, आप लोग को ये समझाने के लिए कि कौन बंदा क्या बोलता है नेगोशिएशन में। बिजनेस तो जानना जरूरी है ना भाई, नहीं तो बिजनेस जानोगे नहीं तो पता क्या चलेगा कि उसने नेगोशिएशन में क्या बोला, क्यों बोला, किस तरह से बोला एंड कब बोला, ये भी जानना जरूरी है। So anyways guys, welcome to this session for a lessons on negotiation from the web series Rocket Boys. मैं movies बोलने जा रहा था इसलिए मैं अटक गया। From the web series Rocket Boys, and guys I'm sure ये खत्म होने के बाद भी एक बार आप थोड़ा टाइम निकाल के डेफिनेटली ये वेब सीरीज देखें, देखने के बाद उसमें से अपने लाइफ के लिए कुछ लेसन्स जमा करें। As I said, enterprising and inspiring. All right. First thing. Oh, I have to remove the annotate. Dear all drugs. Thank you. शुरू करते हैं guys. एक मिनट, लेकिन हर एक क्लिपिंग या हर एक वीडियो, क्लिपिंग एंड वीडियो नहीं है, इट्स स्टिल फोटोग्राफी, बिकॉज क्लिपिंग में शायद ऑनलाइन अच्छे से दिखा पाऊं कि नहीं, वो एक कंसर्न था मेरा, इसलिए मैंने उसको स्टिल में रखा है। थोड़ा बैकड्रॉप समझते हैं हर स्लाइड के पीछे। होता यह है कि एक इंसिडेंट में होमी बाबा एंड विक्रम साराभाई एक इंडिया का फ्लैग होइस्ट कर देते हैं एंड द ब्रिटिश का फ्लैग नीचे निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं तो थोड़ा पंगा हो जाता है। उसके कारण वो लोग जिस रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते हैं उसके ग्रांट्स अटक जाते हैं, उसमें से फंडिंग अटक जाता है। ऑब्वियसली कि आप किसी का अपमान करोगे तो वो फंडिंग तो करेगा नहीं, गारंटीड है। अब ये फंडिंग अटक गया है तो दोनों कंफ्यूज्ड हैं और वो जाके सीवी रमन को पूछते हैं कि यार फंडिंग अटक गया, क्या करें? तो सीवी रमन जी बोलते हैं कि मैं रिजाइन कर देता हूं। तो ये बोलते हैं कि रिजाइन मत करो, वी हैव टू फाइंड अ वे। एंड उस वक्त डॉक्टर होमी भाभा एक मस्त लाइन बोलते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन साइंटिफिक नहीं होता है, लेट्स फाइंड सम डिफरेंट वे। ऐसा करके शेक्सपियर के मूवी प्ले के 2-3 डायलॉग बोलते हैं तो पीछे विक्रम साराभाई दौड़ते दौड़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई क्या कह रहा है तू? ओ ओथेलो, ओ मैकबेथ। बोलते हैं हु वांट्स टू प्ले ओथेलो, हु वांट्स टू प्ले मैकबेथ, अपन कुछ और करते हैं। एंड दे डिसाइड टू डू ए प्रोग्राम ऑन फंड ऑन रामायण। अब उनके स्टूडेंट्स देखते हैं, उनके यहाँ जितने हैं वो सबके सब जेंट्स हैं। हंस के डॉक्टर होमी बाबा बोलते हैं यार इसमें से सीता कौन बनेगा? सो दे डिसाइड टू अप्रोच ए डांस ट्रूप जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। एंड ये वो इंसिडेंट है। ओके, आई एम गोइंग टू ओपन दिस स्लाइड गाइस। ये वो इंसिडेंट है। तो यहां पे वो डांस ट्रूप की जगह पे जाते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, दैट्स विक्रम साराभाई, ओके, प्लेड बाय इस्वाक सिंह। दैट्स डॉक्टर होमी बाबा, प्लेड बाय जिम सर्ब। एंड दिस इज द डांस ट्रूप के टीचर हैं। अब इन दोनों का कॉन्वर्सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। विक्रम साराभाई उसको बोलते हैं कि हम एक फंड रेजर करना चाहते हैं एंड इस तरह मतलब फंड रेजर करना चाहते हैं क्योंकि हमारा फंडिंग अटक गया है। ओके, फंडिंग अटक गया है। वो बोले उसके पहले ये जो गुरु है, जो टीचर है, वो उनको बोलते हैं कि यदि आप मृदुला के भाई नहीं होते और मैं गांधी का भक्त नहीं होता, बापू का भक्त नहीं होता, तो मैं आपको धक्के मार के निकाल देता। आप बाहर जा सकते हैं।
नाउ आए थे तो एक डांस ट्रूप को लेने के लिए, डांस प्रोग्राम करने के लिए, पर शुरू होने से पहले नेगोशिएशन बैठ गया। बंदे ने तो नो बोल दिया। जैसे वो नो बोलते हैं उस टाइम पे वो अपने डांस ट्रूप की तरफ चले जाते हैं और थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। उस टाइम पे डॉक्टर होमी बाबा वो क्या बोलते हैं, लाइटनिंग स्पीड पे सोचते हैं, एकदम इमीडिएट वो बोलते चीज रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं एकदम इमीडिएटली कि ब्रिटिश और भारत छोड़ो। जस्ट द मोमेंट ही सेज दैट इशफाक सिंह यानी कि जो विक्रम साराभाई है उसको देख के बता रहे क्या कर रहे हैं। एंड देन ही सेज, मतलब डॉक्टर होमी बाबा ये गुरु जी को बताते हैं कि हम भी क्रांतिकारी हैं, हम लोग को भी ऐसा हुआ, हमारा ग्रांट अटका दिया है, हम ही ने वो फ्लैग उतार दिया था और अब हमको ये मदद नहीं कर रहे थे। एंड इमीडिएट रिएक्शन ऑफ दिस गुरुजी इज, आपको पहले बता रहा था कि आप क्रांतिकारी हैं तो हम जरूर आपकी मदद कर लेते हैं। एंड उस टाइम पे होमी बाबा वेरी नाइसली स्माइल्स एंड सेज क्रांतिकारी हमारे खून में है। एंड ही टर्न्स, दिस गुरुजी turns and he agrees to do the play, do the drama, do the dance troupe at the show. Lesson guys, कोई भी व्यक्ति नेगोशिएशन में हर बार फैक्ट्स या डेटा से कन्विंस नहीं होता है। इमोशंस का एक बहुत पावरफुल रोल है। My question to you guys, and that's my lesson also. Are we understanding the emotion of the other person? And if you are not understanding the emotion of the other person, then we are not doing the correct negotiation also. Negotiate करने के लिए आपको सामने वाले की इमोशनल कंडीशन को समझना जरूरी है। वो किस चीज के ऊपर स्ट्रेस करता है, किस चीज के ऊपर भार देता है, किस चीज को वो ज्यादा क्या कहते हैं महत्व देता है अपनी निजी जिंदगी में। एक सेल्स का आदमी होता है, उसको आप 35,000 सैलरी देते हो, ही इज हैप्पी, एंड फिर उसको एक सेल्स का टारगेट देते हो, ही इज डूइंग वेरी गुड। एक टाइम आ जाता है, वो एक टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस टेपर हो जाता है, प्लेटू हो जाता है, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं करता है। आप मन में सोचते हो यार मैं उसको 1% कमीशन देता हूं, फिर ये करता हूं। कोई कंसल्टेंट को बुलाओ तो कंसल्टेंट बोलता है कि 1.5% कमीशन करो। भाई इसको पैसे की भूख नहीं है, क्योंकि अभी प्लेटू हो गया है। 1.5% पे भी वो ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। तो क्या होएगा, गो डीप इनसाइड दैट पर्सन। बेटा क्या बात है, व्हाट इज द इशू? कुछ नहीं सर, बस पेरेंट्स नोएडा में फंसे पड़े हैं और मैं इधर बैंगलोर में काम कर रहा हूँ, सोचता हूँ उनके लिए कुछ करूँ, कर नहीं पाता हूँ, ये वो एक्सेट्रा। इमोशनल ट्रॉमा से पास हो रहा है, उसने अपना मन बोल दिया है। इफ यू कैन हेल्प हिम फाइंड ए सोल्यूशन, उस बंदे का वो 1% से ज्यादा वैल्यूएबल चीज हो गया, इज गोइंग टू बी मोर कमिटेड टू यू गाइस। Are we identifying the emotional connect with the other person? सामने वाले के साथ क्या हम इमोशनली कोई चीज देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हम बहुत बार टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, हमने बोला है तो कर देगा। अरे नहीं यार, वो बंदा क्यों करेगा, किस तरह से करेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका दिल क्या कह रहा है, उसके परिवार क्या कह रहा है, उसके सराउंडिंग लोग क्या कर रहे हैं, इमोशनली वो एक्साइटेड है कि नहीं है। Negotiation should spark up the emotion of the person, and negotiation should be done on the emotion of the person, identifying that. मैं उसको abuse करने की बात नहीं कर रहा हूं गाइस, abuse नहीं, यहाँ पे उसको abuse नहीं किया जा रहा था, वो हकीकत था। लेकिन शायद इसमें जो रोल प्ले कर रहा है विक्रम साराभाई, वो उनको बता नहीं पाए। डॉक्टर होमी बाबा इसमें जो रोल कर रहा है वो बता पाया था, एंड इट वाज अ गुड वेल डन इमोशन। अंडरस्टैंड द होल डायमेंशन गाइस, कि जब हम किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं तो क्या हम ये पहलू, ये एस्पेक्ट ओपन करते हैं कि नहीं करते हैं। दैट्स माय लेसन नंबर 1 ऑफ टुडेज सेशन गाइस। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, मैंने आपको बोला था गाइस कि मतलब इफ आई कैन कीप गोइंग, यदि मेरे पास वीडियो होएगा तो मैं शायद पूरा दिन निकाल दूंगा, इतने सारे मेरे पास लेसन्स हैं। लेकिन फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम मैं इसको थोड़ा स्किम करूंगा, हर एक के साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते जाऊंगा, हर एक इसमें से एग्जांपल देते जाऊंगा। मे बी दैट विल हेल्प मी टू हेल्प यू, it will help me to help you to connect with the actual real life as well, and फिर वो once again आप कोई भी एस्पेक्ट में यूज कर सकते हो। ये एक इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन था, डायलॉग आगे अलग था पर नेगोशिएशन अलग था। डॉक्टर होमी बाबा को इनवाइट किया जाता है बाय द टाटा ग्रुप टू मेक अ प्रेजेंटेशन। डॉक्टर होमी बाबा आते हैं और पूरा बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च या बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ
रिसर्च के बारे में कुछ बताते हैं। इसमें दिखाते हैं JRD टाटा को, जे ऐसा बोलते हैं, और उसको देख के उसको बोलता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है, but we are right now not interested. However, you can apply for an individual grant if you want to. ऐसा करके उसको बोलते हैं। डॉक्टर होमी बाबा ये सुन के बाहर चले जाते हैं, थोड़ा अकेले में ऐसे करके बैठते हैं। जब ऐसे करके बैठते हैं तो उनको एक स्पार्क आता है, जो उसका कन्वर्सेशन विक्रम साराभाई के साथ हुआ होता है, एंड वो कन्वर्सेशन लेके वापस दरवाजे के अंदर आते हैं। गाइस, इस स्क्रीन पे आपको 3 कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एनोटेट करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, बट आई ट्राई एंड यूज ए डिफरेंट कलर इफ पॉसिबल। सो ये जो रेड कलर में है, मैंने जिसको सर्कल किया, वो डॉक्टर होमी बाबा है। ये जानना बहुत जरूरी है गाइस कि मैं ये क्यों ऐसे कर रहा हूं। ये जो ब्लू सर्कल में मैं, सॉरी, ये ब्लू सर्कल में जो मैं कर रहा हूं वो जे है, JRD टाटा, ओके। एंड जो मैं ग्रीन सर्कल में कर रहा हूं वो एक मिस्टर चौकसी है, जिसको डॉक्टर होमी बाबा चौकसी अंकल की तरह से रेफर करते थे। ये क्यों मैंने ग्रीन सर्कल भी किया है उसका भी रेफरेंस है, और नेगोशिएशन का एक लेसन भी है, पर अभी फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन दोनों के कन्वर्सेशन पे। तो हुआ ये कि होमी बाबा को बाहर निकाल देते हैं, ऐसा बैठते हैं मायूस होकर, दरवाजा खोल के वापिस फिर अंदर आते हैं, हाथ में एक फाइल होती है, उसको कचरे में डालते हैं, एंड वो उसको जे को बोलते हैं, जे आई थिंक दिस इज शिट, एंड जे बोलते हैं नो नो यू डोंट हैव टू डू दिस, नहीं एक मिनट, एंड देन इमीडिएटली डॉक्टर होमी बाबा से एक मिनट, जस्ट लिसन मी आउट, लेट्स जस्ट लिसन मी आउट, द टाई दैट यू आर वेयरिंग, वेयर इज इट फ्रॉम? The shoes that you are wearing, where is it from? The watch that you are wearing, where is it from? तो बोलते हैं इटली है, स्विट्जरलैंड, ऐसा सब बोलते हैं। Most of the things that we wear are from foreign countries. At least we can have our own electricity. I am not talking about my own self-interest. I'm talking about creating a fundamental research. Why can't we have something called as Tata Institute of Fundamental Research? And ऐसा करके 5 मिनट में टाटा को अपना नाम प्रिजर्व करते हुए अपना एक इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इतना ब्रिलियंटली कन्विंस करके जाते हैं। Guys, lesson number 2. Guys, lesson number 2. Lesson number 2. While negotiating, do you think in the interest of the other person? While negotiating, do you think in the interest of the other person? मैं मेरे बारे में सोचते रहूं, मेरे से बड़ा बेवकूफ गधा कोई नहीं होएगा, मैं सामने वाले के इंटरेस्ट में सोचूं, इट्स अ ब्रिलियंट थिंग। सामने वाले को क्या पसंद आएगा, कौन सी चीज अपील करेगी, कब अपील करेगी, कैसे अपील करेगी, उसका अभी माइंडसेट क्या है, स्टडी करो गाइस, स्टडी करो, देन यू टॉक टू दैट पर्सन। बच्चा बोलता है कि पप्पा मेरी बात सुनते नहीं है, वेरी नॉर्मल थिंग, आई कीप हियरिंग, वेरी नॉर्मल, बरोबर है यार, बंदा थका आ रहा आया है, 11 बज चुके हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, पूरा दिन बिजी था, ये हुआ वो हुआ, उस टाइम पे आके बोलते हो पापा मेरी बात सुनो, तो शांति रखने यार, या तुम इसको चुप नहीं करा सकती? ऐसा करके मम्मी को बोल दिया, बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा बोलता है मेरा बाप सुनता ही नहीं है। करेक्ट है, रॉन्ग टाइमिंग था। सुबह 7 बजे पप्पा उठ जाते हैं, उस दिन तुम भी उठ जाओ 7 बजे। पापा बोलते हैं कि चलो 7:30 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूं, उस दिन बोलो पापा आज मैं आपके साथ मॉर्निंग वॉक आ सकता हूं? क्यों, तू क्या करेगा? नहीं पापा 15 मिनट आपके साथ चलने का है। गाइस 1 घंटा चलोगे, पता भी नहीं चलेगा, एंड उस वक्त जितनी बात होगी शायद तुम और तुम्हारे फादर का कभी ऐसा रिलेशन हुआ ही नहीं, ऐसा फीलिंग आएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, अपना देखते हैं, अपना समय देखते हैं, अपना सब कुछ कन्वीनियंस देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं, सामने वाले का देखो। गाइस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। और क्लियर ऑल ड्रग्स। सो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल था गाइस, कि मेरा पॉइंट बहुत सिंपल था, आई डेलिबरेटली स्टॉप्ड इट, कि जब हम लोग नेगोशिएट करते हैं तो हम लोग को सामने वाले का इंटरेस्ट, सामने वाले का डायमेंशन, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी है।
I'm not saying analyze. I'm not saying that analyze because you don't have the time and the bandwidth to do the analysis. But I am sure you have at least that much time to understand the perspective. सामने वाले ने पूछ लिया कि सर क्या आपका ये कोर्स होएगा तो क्या मैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं। उसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनाना है, वो उसके दिमाग में आया है। कैसे बनाने का है, किस तरह से बनाने का है, सामने वाले का क्वेश्चन को समझो गाइस, उसके परिस्थिति को समझो एंड तब जाके आप आंसर करो। सामने वाला बोलता है कि आपको माल कब चाहिए, तो इसी एक्चुअली आस्किंग कि कल सुबह चाहिए। अरे वो आपका श्योरिटी मांग रहा है, तो उसके उस एस्पेक्ट को समझो। टॉक इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पर्सन। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करो। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो 3 फायदे भी होंगे आपको। नंबर 1, आप अपने आप से सेल्फिशनेस से निकल के सेल्फलेस हो जाओगे। सामने वाले के इंटरेस्ट में सोचोगे। होगा कुछ, उसका ऐसी परिस्थिति होएगी तो सोच सकता है, तो उसके इंटरेस्ट में सोचोगे, सेल्फलेसनेस से आगे निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही सेल्फलेसनेस से आगे निकल जाओगे, उसका इंटरेस्ट सोचना शुरू करोगे, तो आप उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट मेकिंग सम अरेंजमेंट, सम फैसिलिटी फॉर द अदर पर्सन। एट द मोमेंट आप सामने वाले के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी अरेंजमेंट करना शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली दैट पर्सन्स कमिटमेंट टुवर्ड्स यू ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। बट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको साथ मैं कभी पहली बार ट्रैवल कर रहा था। दे वर विमेन, आने में तकलीफ पड़ती है, दूर से आते हैं, तो मैं उनके लिए ऐसा सजेस्ट करता था कि ना तुम फ्लाइट टाइमिंग ये टाइम का लो। बोलते हैं नहीं हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मतलब तुम लोग अपने घर से 3 बजे निकलना पड़ेगा, 4 बजे निकलना पड़ेगा। पॉसिबल ही नहीं है, इतना दूर रहते हो, 4 बजे निकलोगे, लोनली रास्ते पे आओगे। इट इज अननेसेसरी रिस्क टू यू एंड टू मी एंड टू योर फैमिली ऑल्सो। 2 बजे थोड़ी ना उठ के कोई नहा धो के तैयार होके आता है, हर रोज मिड ट्रैवल करोगे। इससे तो बेटर है कि थोड़ा लेटर फ्लाइट ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा कन्वीनियंट टाइमिंग से आओ। You start thinking in the interest of the other person, automatically the other person starts thinking in your interest. It's just a very simple thing. मेरा टाइम, मेरा कन्वीनियंस, सब कुछ मेरा। अबे सब कुछ तुम्हारा तो फिर सामने वाला तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों लेगा यार? वेरी इंपॉर्टेंट। So guys understand this very simple dimension कि negotiation में the moment you start thinking in the interest of the other person, आपको ये चीजें हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। Alright, anyways, so as I said, मैं कंटिन्यू करूंगा, all the lessons कंटिन्यू करता रहूंगा। हर एक के लेसन्स के बाद ये 2 लेसन्स नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, मेरे और लेसन्स आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये 2 एग्जांपल बताने के लिए थोड़ा स्क्रीन को बंद कर दिया, so that I can share some more one-to-one time with you guys. So anyways, that's my second take of the day. Think in the interest of the other person. Think in the interest of the other person. एक क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में आंसर करो। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं एंड मैं देखना चाहता हूं रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रियल वर्ल्ड आंसर करना। ओके, ऑनेस्ट क्वेश्चन, ऑनेस्ट होएगा, आंसर आपको बताने का है। एंड मैंने बोला कि एक दूसरे का आंसर देख सकते हैं, बट डोंट नो हु अदर पर्सन इज, डोंट वरी अबाउट इट, नोबडी इज गोइंग टू जज यू आल्सो। क्या आप लोग में से किसी को भी ये कंडीशन हुई है? हैज एनीबडी faced this type of a condition? You have been talking to somebody for the last 5 to 7 years or maybe 10 years to join you. He is not your enemy, he is not your क्या कहते हैं, he is not your enemy, but he is not working with you also. एंड आप हर बार चाहते हैं कि वो बंदा आपके साथ जुड़े, क्योंकि वो जुड़ेगा तो आप और वो दोनों मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इट कुड बी ए गुड सप्लायर, इट कुड बी ए गुड कस्टमर, इट कुड बी ए गुड पार्टनर, इट कुड बी ए गुड एसोसिएट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हैव और हैज एनीबडी फेस्ड दिस कंडीशन? कम ऑन, रिस्पॉन्ड गाइस, रिस्पॉन्ड। ओह माय गुडनेस, मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले तो धड़ाधड़ आंसर आने लगे। ओ शिट, ओ शिट, oh my goodness, oh my goodness, superb, superb, superb. I'm so glad that you guys have responded. Okay, 2 जन को नो भी आया, that's fine guys, जरूरी नहीं है सबके यस आएंगे, but ठीक है, there are number of people who said yes to it. Okay, मेरा सेकंड क्वेश्चन फॉलो ऑन पे है। 10 साल, 8 साल, 15 साल बंदा मना करता है, हम लोग क्या होप छोड़ देते हैं?
जिन लोगों ने यस किया था उनको ये क्वेश्चन ज्यादा एप्लीकेबल है। ओके, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग पीपल, मैडम, आई एम एंजॉयिंग इट। ओके, अब मजा ये आएगा कि जिन लोग ने अभी नो लिखा है, आई कैन सी कपल ऑफ नेम्स, आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम्स बिकॉज़ एज आई सेड इट्स अ प्रॉमिस, मैं नेम्स नहीं बताऊंगा, पर जिन लोग ने अभी नो लिखा है वो लोग वन लाइन में आंसर कर सकते हैं मेरे इस क्वेश्चन का, क्यों आपने अभी तक होप नहीं छोड़ा है? क्यों आपने होप अभी तक नहीं छोड़ा है? वन लाइन में आंसर करिए, ज्यादा लंबा करने का जरूरत नहीं, वन लाइन में आंसर करिए। मतलब डोंट गिव मी द स्टूपिड थिंग, होप पे दुनिया कायम है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने अभी तक ये होप क्यों नहीं छोड़ा है? जस्ट गिव मी एन आंसर, यू कैन टाइप इट आउट गाइस, अबाउट वन लाइन का आंसर चाहिए, आई एम गिविंग यू दैट टाइम बैंडविड्थ। ओके ओके, डबल मोदी से कन्विक्शन है, ठीक है, it could be his own conviction and the conviction he will be able to convince the other person in longer duration. ठीक है डबल मोदी, I accept your point, very good point, very good point, बहुत अच्छा लगा ये point सुन के। conviction ये अपने बंदे की बात करता है, तुम दिल से कितना बिलीव करते हो। मैंने मार्केटिंग का वेबिनार लिया था कि मार्केटिंग में your conviction should drive the other person, मतलब यदि कन्विंस्ड होंगे तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू टाइप इट आउट, एनी गुड आंसर टू दैट, कि आप क्यों होप नहीं छोड़ रहे हैं? एनीबडी? वेल, अभी लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मे बी टाइप कर रहे हैं, तो लेट्स गिव देम अ मिनट और सो, बट आई विल कंटिन्यू, आई कैन स्टिल हैंडल इट श्योरली एंड गेट रिजल्ट ऑल्सो। ठीक है, वेरी गुड, ओके, very good. Anybody else? That's fine guys, keep typing it, मैं बाद में आपके क्वेश्चन को, अरे आपके रिस्पॉन्स को ले लूंगा। In the meantime, let's get back to the Rocket Boys. And Rocket Boys में ये एक इंसिडेंट है जो बड़ा अच्छा है। Guys, pay attention to this. Just look at me. Just look at me, guys. Everybody look at me. Very good point, Rahim. Finding right point to approach. Fantastic point. Super, Rahim. Fantastic. Fantastic. Brilliant point. सही मौका, सही समय, सही परिस्थिति, सही एनवायरमेंट। वेरी गुड पॉइंट, वाह, सुपर्ब। एनीवेज गाइस, पे अटेंशन हियर। ओके, रॉकेट बॉयज में एक बहुत मस्त इंसिडेंट है। राजा करके एक कैरेक्टर है, ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड साइंटिस्ट, एंड यहां पे आपको तो अभी होमी बाबा मालूम पड़ गए हैं। ओके, अभी एनोटेट करने का जरूरत नहीं है। सो ये होमी बाबा है। Let me do that. It becomes easy for you guys. ये होमी बाबा है, and the other character here is Raza. Okay, तो होमी बाबा राजा के साथ बात करते हैं, and Raza is a person, is also a scientist. वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट लीड करते हैं, ऐसा दिखाया जाता है वेब सीरीज में। तो ये उनको एक मस्त क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर होमी बाबा, राजा, व्हाई डू वी डू दिस? व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल कि इंडियाज बेस्ट साइंटिस्ट माइंड्स वर्क टुगेदर? व्हाई? फिर एक मस्त लाइन है उसके आगे, वो भी जरूरी है। ओके, एंड वो भी जरूरी है आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ये बंद करो, एंड नेक्स्ट लाइन। इट्स बीन 15 इयर्स यार, हम 15 साल से एक ही चीज के ऊपर डिस्कस आर्ग्यू कर रहे हैं, हम क्यों कंक्लूड नहीं कर सकते हैं? रजा, क्यों? रजा भी उसको एक मस्त लाइन बोलते हैं, बोलते नहीं, आई जेन्युइनली बिलीव यू डन अ वेरी गुड जॉब। ये एक बहुत बढ़िया चीज करते हैं ट्रॉम्बे में, जब अपना एटॉमिक एनर्जी का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ये डॉक्टर राजा एंड जवाहरलाल नेहरू, तो उसके बाद का ये इंसिडेंट है, इवनिंग का टाइम है, तो उसको बोलते हैं इट्स बीन 15 इयर्स यार। एंड राजा उसको बोलते भी हैं कि मैं जेन्युइनली तेरे को अप्रिशिएट भी करता हूं। यू नो गाइस, डॉक्टर होमी बाबा उसको एक लिकर ऑफर करते हैं, वो घूम फिर के आके उधर बैठते हैं, हाथ में ग्लास पकड़ते हैं, सीन वहां पे कट हो जाता है।
बट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लेसन मिला। अभी आप बोलोगे सर ये नेगोशिएशन का लेसन है, एक्चुअली मैं एक प्योरली नेगोशिएशन का लेसन नहीं बताऊंगा। इट्स अ मिक्स ऑफ नेगोशिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्लीज पे अटेंशन, मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन गाइस, लुक एट मी। नेगोशिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, बी जेन्युइनली परसिस्टेंट, बी जेन्युइनली परसिस्टेंट। जेन्युइनली परसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं टाइम पास करने के लिए उसके पीछे पड़ता हूं। ए भाई बोलने, हाँ नहीं बोलता है, छोड़ने यार, टाइम माथा को करता है छोड़ने, नहीं अपने को सर ने बोला इसका फॉलो अप करने का, ओ भाई हेलो सर ने बोला है इसलिए फॉलो अप करने का, किसी ने कोई प्रेशर किया इसलिए फॉलो अप करने का, नहीं गाइस, किसी ने नहीं बोला है, किसी ने तुमको नहीं बताया है, तुम अपने मन से जेन्युइनली परसिस्टेंट हो। सुबह उठते हो तो काम के लिए एक्साइटेड फील करते हो, वो जो परसिस्टेंट तुम्हारा है, जेन्युइन परसिस्टेंट, वो आपका जबरदस्त पावरफुल एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी है। और उसके में से निकलती हुई जो वर्ड्स हैं, उसके में से निकलता हुआ एक्सप्रेशन जो है, वो आपका सबसे पावरफुल नेगोशिएशन है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मतलब यदि मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए वो राजा को बात करता था तो ऐसा बोलता था, राजा इट्स बीन 15 इयर्स, तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, दैट्स योर चॉइस। एक बार बहुत मस्त जोक हुआ था, मेरी वाइफ को किसी ने खाने के लिए इनविटेशन दिया, तो फोन था, स्पीकर फोन पे रखा था, तो मेरी वाइफ ने फोन स्पीकर फोन पे ऑन किया और सामने से वो लड़की उसको फोन पे बोलती है, अरे श्वेता मैं चाहती हूं तुम खाने के लिए आओ। ओके, तो श्वेता माय वाइफ जस्ट सेड कि कौन सी डेट पे है, बोले 8 तारीख को आने का है, 8 तारीख को आने का है। तो उसने बोला हाँ देखती हूँ, तो माय वाइफ जस्ट सेड देखती हूँ। पता है सामने वाला क्या बोलता है, नहीं मैं तो जानती हूँ तुम तो काफी बिजी रहती हो, नहीं आओगी मुझे पता ही है। मैं इतना हंस रहा था, मैं मेरी वाइफ को बोला वो तेरे को फोन करके ये बोल रही है कि तू आना ही नहीं, दैट इज द वे इट इज बीइंग इनवाइटेड। जेन्युइन इन्विटेशन होता था ऐसा बोलती, अरे श्वेता यार तेरी फ्रेंड तेरे को इनवाइट कर रही है, कुछ भी चेंज कर लेकिन मेरे यहां आने का है। Are you guys getting the difference between both? जेन्युइन परसिस्टेंट, जेन्युइन परसिस्टेंट एक एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी है, और वो यदि आपके अंदर होएगा तो आपका बात करने का इमोशन में आ जाएगा, आपका बात करने का एक्सप्रेशन में आ जाएगा। आप सामने, मतलब ट्रस्ट मी गाइस, मैं एक नहीं 1000 बार बोल चुका हूं, आज 1000वीं बार एक होएगा। आई डोंट नो, आई लॉस्ट द काउंट ऑफ इट आल्सो, बट मेरे को बहुत सारे मेरे बच्चे बोलते हैं कि सर आपके क्लास में ऐसा होता है वैसा होता है। मैं उनको बोलता हूं गाइस आप लोग झूठ बोल रहे हो। आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई सी यू गाइस बिकॉज आई फील यू आर द स्टेरॉइड जिसके कारण मैं जिंदा हूं। यू आर द स्टेरॉइड, मतलब मेरी ताकत मेरे बच्चे हैं, मेरी ताकत मेरा परिवार है, जो मेरी ताकत है, तो आई रिस्पॉन्ड टू दैट। And for them genuinely persistent होना makes sense, और फिर वो आपके एक्सप्रेशन में दिखल आता है। एक मस्त इंसिडेंट की बात है। ओके, आप लोग को लग रहा है कितना इंसिडेंट बताएगा, आपके आगे की स्लाइड जाने की नहीं है। अरे दीपक मैडम से मैं परमिशन लेके 5 मिनट एक्स्ट्रा बोल लूंगा गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, पर एक फ्लो में जा रहा तो इंटरेस्टिंग होएगा। और मैंने आपको बोला ना मैं रियल लाइफ के 1-2 एग्जाम्पल देते जाऊंगा। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल देके अपन निपट जाते हैं। बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मेरी नीस है, वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आने वाली थी, फिर वो कहीं रहने वाली थी, ऐसा सब हो रहा था। अभी क्या हुआ कि मेरा भाई है, जो मेरे भाभी है, बोलते हैं कि आपको कोई ऐसा तकलीफ पड़ने वाला है तो रहने दो, हमारे यहाँ वापिस आ जाएगी, क्योंकि ऐसा फिक्स किया था कि वो मेरे घर पे रहेगी। और मेरी ऐसी टीम गई, मैंने उनको लेफ्ट राइट एंड सेंटर सुनाया, बोले क्या रहे तुम लोग, वापिस बुला रहे, वापिस बुला, उसको भेजो इधर, उसको तो एक्सपोजर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ड्र करके फायरिंग चालू कर दिया। नेक्स्ट डे बेचारा चुप हो गया, बोलता है बराबर है, तो करेक्ट है। इट वॉज माई जेन्युइन रिक्वायरमेंट कि भाई यार बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए। मैं बोल रहा था, जब मैं बोल रहा था तो जेन्युइन परसिस्टेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर एक्सप्रेशन। तो यदि जेन्युइन परसिस्टेंस है वो एक एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी है, और एक्सप्रेशन में लाना इज ए नेगोशिएशन क्वालिटी। इसलिए मैंने बोला ये स्लाइड में दोनों चीजें आती है। इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, ब्रिलियंट थिंग गाइस। मैं तो कभी कभार ये सोचता हूं कि जो इसके कलाकार हैं, वो जो कलाकार जिस तरह के हैं, क्या उन्होंने भी इतना डेप्थ में जाके सोचा होगा कि नहीं, पता नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि आई एंजॉयड दिस ब्रिलियंट क्राफ्टिंग ऑफ डायरेक्शन बाय अभय पन्नू। ब्रिलियंट है गाइस, चांस मिले तो देख लेना।
Alright, and that gets me to one more slide which is going forward. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है guys, pay attention, pay attention. मैं बहुत ही पावरफुल लाइन बताने जा रहा हूं, और वो बोलते हैं lend your ears, ऐसा कुछ बोलते हैं, lend me your ears ऐसा करके, तो प्लीज ऐसा आप लोग ध्यान देना. एक साइंटिफिक सम्मेलन होता है, इंडिया के बेस्ट माइंड्स बुलाए जाते हैं, और वो जो बेस्ट माइंड्स बुलाए जाते हैं उतने में अचानक एक ड्रामेटिक एंट्री होती है डॉक्टर होमी भाभा की, गाड़ी में, और पीछे 2 ट्रक में आते हैं, एंड फिर अपनी जेब में से एक इतनी छोटी सी, जिसको अपन उंगली में रिंग डालने को बोलते हैं, इसी रिंग का एक बॉक्स होता है, एंड फिर वो बॉक्स लेके आते हैं. आई एम कटिंग डाउन द स्टोरी कंटेंट, और सीधा मतलब उस पॉइंट पे आ जाता हूं. वो जवाहरलाल नेहरू को देते हैं. यहाँ पे जो आप व्हाइट कैप पे देखते हैं इज द पिक्चराइजेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड द अदर साइड इज जस्ट अ सेकंड, करेक्ट. सो दिस इज होमी भाभा. ओके, तो जवाहरलाल नेहरू के सामने वो एक इंसिडेंट आ जाता है, और एक ऐसा रिंग वाला जो बॉक्स होता है ओपन करते हैं, उसमें से पत्थर निकलता है. बोलता है ये क्या है, तो बोले मैं आपको गिफ्ट करने आया. तो व्हाट इज दिस गिफ्ट? बोले ये दिस इज स्टोन. बोले स्टोन तो को गिफ्ट करता है. बोले ये स्टोन नहीं है, ये वो स्टोन है जिसके अंदर यूरेनियम है, और हम यूरेनियम का इतना उपयोग कर सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू, इक्वेशन भी है जो बताते हैं कि इक्विवेलेंट टू दैट मच अमाउंट ऑफ कोल, कि उतना कोल को जला के जितना बिजली का उत्पन्न होएगा, उससे अलावा इतना ही यूरेनियम यूज करके इतना ही बिजली हम जनरेट कर पाएंगे, और उसको टू बी मच मोर एफिशिएंट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उस वक्त ये जवाहरलाल नेहरू एक मस्त लाइन बोलते हैं, आर यू एब्सोल्युटली श्योर, आर यू श्योर अबाउट दैट होमी? एंड ये बोलते हैं एब्सोल्युटली. और उसके बाद की एक लाइन बहुत ही बढ़िया है, एक सेकेंड, उसके बाद की जो लाइन है वो बहुत ही बढ़िया लाइन है. सॉरी, मैं एक स्टेप आगे निकल गया. एक बहुत ही बढ़िया लाइन है, बोलता है कि मैंने इसका ऑलरेडी ट्रायल कर दिया है, मैंने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया है, तो इसको ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है, इट इज एब्सोल्युटली डन. आपकी कंसेंट की जरूरत है, तो मैंने जो प्रोटोटाइप किया है मैं उसको फुल स्केल पे लगा के सकता हूं. मैंने जो प्रोटोटाइप किया है मैं उसको फुल स्केल पे लगा सकता हूं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन नेगोशिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन नेगोशिएशन. Credibility. Credibility by virtue of experience helps you to build trust. Please remember this, write it and memorize it. Credibility by virtue of experience helps you to build trust. And trust leads to a business. Credibility by virtue of experience helps you to build trust. आपकी जो credibility है ना, वो किताबी चीजों से नहीं, अनुभव से आती है. हमारे जो मेंटर्स होते हैं फैमिली बिजनेस में, उनका जो अनुभव हुआ है उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी आई है. मैं बहुत बार अपने बच्चों को बोलता हूं कि तुम्हारे पप्पा राइट है. बोलते सर हर चीज में? हाँ. ऐसा क्यों? यार वो अनुभव है, उन्होंने जितने ट्रायल किए हैं, उन्होंने जितनी गलतियां करी हैं, उतना तो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे. तो राइट है. अब सेकंड पॉइंट, तुम अपने आप भी राइट हो सकते हो, ये भी मैं मना नहीं करता, पर उनका पर्सपेक्टिव समझने के बाद तुम अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि तुम कितने सही हो या कितने गलत हो, कितने उनके साथ अलाइंड हो, कितने डिफरेंट हो. दैट्स इट. वेरी सिंपल सबमिशन. दैट्स माय पॉइंट टू यू गाइस. क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंस बिल्ड्स ट्रस्ट. होमी भाभा की जब यहां पे ऐसी एंट्री होती है ना, तो सब लोग को थोड़े बौखलाए होते हैं. वो थोकत राजा साहब तो उसकी बहुत थोड़ी फिरकी भी उतारते हैं, इंटरेस्टिंग गिफ्ट ऐसा करके जब वो पत्थर दिखाते हैं. तो उस वक्त होमी भाभा उसको छुछू थुथू नहीं करते हैं, उसको बल्कि कन्वर्सेशन में अंदर शामिल करते हैं. वो कन्वर्सेशन में शामिल होते हैं और फिर वो चीज बताते भी हैं कि जब कोई ऐसी मस्करी करता है, ऐसा करता है, तो उसके लिए घृणा मत करो. डोंट फील बैड अबाउट दैट पर्सन गाइस. रादर मैं आपको एक फंडामेंटल चीज बता रहा हूं, आपने यदि अनुभव किया है तो आपकी क्रेडिबिलिटी में दिख जाएगा, आपका विश्वास में दिख जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाएगा. एंड वंस यू हैव अचीव्ड दैट लेवल, ट्रस्ट मी, यू आर ओके.
फिर एब्सोल्युटली ओके, फिर आपको तो सिर्फ लोगों तक खाली मैसेज ही पहुंचाने का है कि ये मैंने कर दिया है, तुमको चाहिए तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूं। तुम प्रूफ दे सकते हो नहीं गाइस? ये जो वेब सीरीज है इसमें ऐसे एक नहीं अनगिनत इंसिडेंट्स हैं, अनगिनत नेगोशिएशन की घटनाएं हैं। यूरेनियम प्रोक्योर करने के लिए मोनोजाइट रिजर्व्स चाहिए। वो मोनोजाइट रिजर्व्स कहां से चाहिए? त्रावणकोर से चाहिए। त्रावणकोर के राजा के साथ किस तरह से डॉक्टर होमी भाभा नेगोशिएट करते हैं, वो वंस अगेन एक डिफरेंट कहानी है। मैंने बोला ऐसा कि पॉजिटिव ऑफ टाइम के कारण मैं हर एक इंसिडेंट यहाँ पे नरेट नहीं कर पाऊंगा, पर यदि ऐसा आप देख सकते हैं तो कृपा करके उसको देखें, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट लोग कितनी हद तक गए थे टू मेक श्योर कि अपने देश को आगे बढ़ने में वो हर मुमकिन अपनी कोशिश करते हैं। ये स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट था, जहां पे मैंने आपको पहले की 2 स्लाइड दिखाई, जहां वो रजा को मिलते हैं। स्विमिंग पूल में जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि नहीं, उसका ज्ञान उनको अपने 2 बैचमेट से मिला जो कैम्ब्रिज में उनके साथ पढ़ते थे। तो उनको मिलने के लिए वहां पे गए, और वहां पे किस तरह से वो नेगोशिएट करते हैं उनके साथ उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, वो वंस अगेन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब गाइस समाप्ति नहीं होएंगे इसमें से, इतनी कहानियां इसमें से निकलती जाएगी। पर एज आई सेड, पॉजिटिव ऑफ टाइम के कारण मैं शायद बता नहीं पाऊंगा, बट ये एक हकीकत है कि ए पर्सन हु इज बीन passionate about something, who cares about something, naturally ends up doing that also. And जब वो कर लेते हैं तो उनके मुंह पे एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक स्माइल होता है। एंड नेगोशिएशन की कामयाबी यहां पे तो सेल्फ इंटरेस्ट भी नहीं है, नेशन इंटरेस्ट है, जनता है, पब्लिक है। So that gets me to the second last slide of the day and the session, guys. Second last slide. बहुत ही बढ़िया ये होता है, ये टुवर्ड्स द एंड वाली स्लाइड है, एंड टुवर्ड्स द एंड वाली क्लिपिंग भी है। 3-4 चीजें एक साथ आती है इसमें। होमी भाभा पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलने आते हैं अलॉन्ग विद विक्रम साराभाई, एंड इसमें जो दिख रहे हैं तीसरे व्यक्ति इज अब्दुल कलाम, मतलब कैरेक्टर्स इन द वेब सीरीज। हॉल में एंट्री लेते हैं ना, तो होमी भाभा बोलते हैं गुड मॉर्निंग भाई, अंडरस्टैंड द वर्ड गुड मॉर्निंग भाई, पर विक्रम साराभाई बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। होमी भाभा के कारण उनको एंट्री जल्दी से मिल जाती है। नेगोशिएशन में आपके पास कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंफ्लुएंस होता है, दैट पर्सन मे और थ्रू सम एफर्ट्स विल हेल्प यू टू एंटर, ओपन द डोर इजीली। वो आपका काम नहीं निकाल रहे क्योंकि वो गलत बात हो जाएगी, लेकिन आपके लिए दरवाजा खोलने का चांस जरूर मिलेगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट पर्सन विल हेल्प यू ओपन द डोर। इट इज नेगोशिएशन में एंड सेल्स में गाइस देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। एक बंदा जो आपके लिए दरवाजा खोल के देता है, दूसरा बंदा जो आपकी सेल्स पिच करता है, एंड तीसरा बंदा जो टेक्निकली सेल को क्लोज करता है। नेगोशिएशन इज सेम थिंग। एक बंदा जो आपके लिए दरवाजा खोल देता है, दूसरा बंदा जो उसके साथ नेगोशिएट करता है, पॉइंट ऑफ कन्विक्शन रखता है, एंड तीसरा बंदा जो शायद क्लोजिंग करता है, क्योंकि क्लोजिंग की जो रिक्वायरमेंट थी वो बाकी 2 जन आंसर नहीं कर पाए, तीसरा वाला कर पाया। इसमें सेम चीज होता है। जैसे स्पेस प्रोग्राम की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि विक्रम इस वक्त हमारे देश की रिक्वायरमेंट कुछ और है, मैं इसकी कंसेंट नहीं दे पाऊंगा, आई कैन नॉट जस्टिफाई दैट। अभी वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, एंड उसके लिए मैं एक आपके सामने स्क्रीन को हटाऊंगा। या एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। तीनों 3 जन अपने तरह के आर्ग्यूमेंट करते हैं। डॉक्टर होमी भाभा जो आर्ग्यू करते हैं वो ऐसा बोलते हैं, होमी भाभा जो आर्ग्यू करते हैं वो ऐसा बोलते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेविगेशन, वेदर मैपिंग, मीटीरियोलॉजी, बड़ी हाईफाई चीजें हो गई। साराभाई बोलते हैं कि फेमिन ग्रस्त विस्तार, मतलब जो सूखाग्रस्त विस्तार है वहां पे पानी कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, तो वो हम लोगों को बता पाएंगे। नेहरू डजंट लुक कन्विंसिंग, वो कन्विंस नहीं हुए, तो बोलते हैं कि बट इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट आई कांट जस्टिफाई फॉर द थिंग्स दैट यू टॉकिंग अबाउट। उतने में कलाम एक मस्त लाइन बोलते हैं, कलाम साहब एक मस्त लाइन बोलते हैं
He talks about national security, military uses, navigation and data analysis, rescue and search operations, missile development. And फिर पूरा का पूरा जो डायमेंशन है जवाहरलाल नेहरू का थिंकिंग का चेंज हो जाता है. बोलते हैं ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट से मैंने सोचा ही नहीं था. गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यहां आपको मालूम पड़ना चाहिए. Pay attention guys, look at me just. You should know what are the points of conviction for the other person and use them carefully at the relevant time. What are the points of conviction for the other person and use them at the relevant time. शायद ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई ना कोई तरीके से बंदा 110% कन्विंस होगा. आपके ऊपर है. आप किसी के ना को ना बोल के निकल जाते हो और फिर बोलते हो ठीक है यार, मतलब ओके ना ही था नहीं. एंटरप्रेन्योर को ना तो डे वन से सुनने को मिलते आया है. डे वन से उसको परिस्थिति ऐसी हुई थी कि ना ना ना, लेकिन वो बंदा फिर भी फाइट आउट करता है, उस नाग के सामने खड़ा हो जाता है और उस नाग के सामने अपना पॉइंट ऑफ कन्विक्शन रखने की कोशिश करता है. That's a very powerful way of negotiating. Guys, are you talking about the points that can convince the other person from that point, that person's conviction point? तुम्हारा point नहीं, उसके point से. National security सामने वाले को अपील कर गया था. India space program का permission मिलता है. And that gets me to the last and most important slide, my best slide. Yes, my dear friends. Everything is impossible until it is done. हमारी कंट्री में डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई जैसे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट और उसके जैसे बहुत सारे थे. इनके मतलब ये रॉकेट बॉयज बना इसलिए नाम मालूम. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें करी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पर उनकी जर्नी, मतलब दे वर बोर्न विद, यू कैन से गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून ऐसे बोलते हैं, प्लैटिनम स्पून भी बोल सकते हैं. इसमें दिखाया है कि साराभाई का घर किस तरह का है, उनके घर में कितनी बड़ी लॉन है, कितने लोग आजू बाजू हैं. होमी भाभा का घर दिखाया है, मेरांगिर उनका जो घर है यहाँ बॉम्बे में. ओके, उनको नौकर चाकर अवेलेबल थे उस टाइम पे. एंड जिस तरह का लाइफस्टाइल, जिस तरह का लग्जरी था, वो सब दिखाया है. इन सब चीज होने के बावजूद उनका कितने टफ नेगोशिएशन से पास होना पड़ा है, जस्ट टू मेक श्योर दैट दे अचीव द गोल, द एम्बिशन दैट दे हैव सेट अक्रॉस. गाइस, एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट which is not only meant for our development but for the development of the people around. जब किसी बंदे में वो स्पिरिट आ जाती है तब जाके ऐसे कोई कामयाब चीज बनती है. एंड एंड में ये खत्म होते होते जब ये रॉकेट ऐसे जाता है रॉकेट बॉयज मूवी में, आई एम सॉरी वेब सीरीज में, तब अपने को भी ऐसा लगता है या एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल until it is done. That's the whole idea, guys. Negotiation lessons from the webinar web series Rocket Boys, brilliantly crafted by Abhay Pannu. It's on Sony Live. Have a watch at it, guys. And not only, as I said, for the negotiation, but from an enterprising and inspiring point of view as well. Brilliantly crafted. एक कलाकार ने बहुत ही अच्छे बहुत ही खूबी से अपना रोल प्ले किया है इसमें. And I wish everybody a fantastic day ahead and a brilliant Sunday and the week ahead. I'm sure you guys had been missing our Sunday session. So Deepal madam के साथ बात हो रहा था. Deepal madam बोले कि sir come up with a new topic. This was a very new topic for us, so we decided to come up with this. I'm not sure अब next Sunday मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, because it's a little packed schedule that's going on. In fact, next Sunday तो मेरा class भी है, so I'm not going to be online in any case. But definitely, guys, I wish you all the best and have a great time. Happy learning, happy great business. God bless you guys. Thank you very much. That's the formal end of the webinar that we are right now. In case anybody has any question, please put forth in your chat box. If not, we can wrap up this session. Thank you guys. Thank you very much. Thank you, Deepal madam. Thank you, Akshay, for setting up this wonderful webinar. I wish everybody a great time and God bless you guys. In case, as I said, any questions, please do put it in the chat box. Thank you.